श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एहो बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। वाहिगुरु साहिब जियो। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाय। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। इछ पुन्नी वड भागणी, वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै न लाए। हलत पलत सवारे होन, निहचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ ना जन्मै ताय। जिह्वा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहियै, जिसनो तिल ना तमाय। जिह्वा एक अनेक गुण तरे, नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहियै, जिसनो तिल ना तमाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी साजी नवाजी गोद अंदर जुड़ मिल बैठी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, गुरु चरणों में बैठ के रब्बी बाणी का पाठ सत्कारयोग भाई साहब पासों श्रवण किया है। आओ समा है पावन गुरमत विचारां दा 12 महाबाणी की लड़ीवार तो विचार साझी कर रहे हैं। कल रोज़ आपां माघ महीने की पावन विचार की सी। महाराज ने बख्शिश करके समझाउणा कीता सी। माघ सुचे से कांढिए, जिन पूरा गुर मेहरवान। जिन्हां उत्ते गुरु की अथाह दया कृपा बख्शिश हो जाती है। माघ के महीने विच वो मनुख सुच्चे आखे जाते हैं, पवित्र जीवन वाले आखे जाते हैं। हुण जिन्हां दा जीवन पवित्र है, जिहड़े नाम जपते हैं, जिहड़े गुरु की संगत करते हैं, गुरबाणी अनुसार जीवन ढालते हैं, तो गुरु पातशाह जी कृपा करते हैं कि ऐसे मनुख एक महान खजाना अपने जीवन दे विच एकत्र कर लेते हैं। जिवें जिवें वो धर्म नूं कमाउंदे ने, उवें उवें उन्हां कोल एक महान खजाना जिहड़ा वो एकत्र हुंदा है, इकट्ठा हुंदा जांदा है। वो खजाना किहड़ा है? वो है रब्बी गुणां दा खजाना।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨੇਊ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ। ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਇਹ ਸੜਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਤ ਸਤ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਗਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਫਲ ਗੁਣ। ਫੱਗਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਫਲ ਗੁਣ। ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆਏ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਰੰਭਤਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੇਤ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਲ ਤੱਕ। ਅਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,
फिर उन्होंने बड़िया मुश्किलों का सामना भी करना पैंदा है। एक दरख्त बन लग्या उन्होंने धुप्पां का सामना करना पैंदा है, उन्होंने हनेरियां का तूफानां का सामना करना पैंदा है। कई बारी बड़ी भारी मीह पैंदा है तो उन्होंने कितना सामना करना पैंदा है, कितनी मुश्किलों का, पर फिर भी वो अपनी मंजिल वाल वधदा रहिंदा, रुकदा नहीं। कितनी मुश्किल आउंदियां ने। एक दिन वो भी फल के रूप में पहुंच जाता है, पर उनकी यात्रा जिहड़ी है एक संघर्ष के विचों लंघ के, इस तरह ही गुरसिख के जीवन की यात्रा जिहड़ी ये सौखी नहीं है, बड़ी कठिन है, बड़ी औखी है। बंदा तुरदा है, कदी काम, कदी क्रोध, कदी लोभ, कदी मोह, कदी हंकार अगे आ जाते हैं, कदी ईर्खा आ जाती, कदी द्वैत आ जाता है। ये विकार अगे आके रोक लेंगे, वधन नहीं देते अगे। कई बार परिवार का मोह आ जाता है, समाज दियां कई इहो जिहियां मजबूरियां मनुख के सामने खड़ियां होंदियां ने कि मनुख चाहुंदा ते है मैं कदम अगे पुट्टां पर वध नहीं पाउंदा। ये तो गुरु बख्शिश करे कि मनुख अगे फल तक पहुँच जाए, मनुख सच तक पहुँच जाए, मनुख परमात्मा तक पहुँच जाए मनुख। ये तो गुरु की बख्शिश नाल है। तो गुरु साहब आखते ने जे अपने जीवन में गुण पैदा करेगा तो गुणों की ही भगती का जिक्र गुरु नानक पातशाह जी ने किया है। किसी विशेष प्रकार की भगती का जिक्र नहीं भी तू पुठे लटकना है या जल धारे करने ने या तू पैरी ही तुर के जाना है। कई बार साडे मन में आता भी शायद जेड़े लोग चप्पल नहीं पाते पैदल ही गुरुद्वारे तक तुर के जाते हैं, शायद यही असली भगती है। यही भगत नहीं जेड़े पुठे लटकते हैं या भुखे रहिंदे ने, जेड़े वर्त रखते हैं, इहो जिहे कर्म कांड, इहो जिहा दिखावा जिहड़े मनुख करते हैं, सानू लगता भी शायद यही भगती है। गुरु नानक साहब कहन लगे नहीं, मेरी भगती दुनिया दे विच सब तो वखरी है, मेरी भगती गुणां दी भगती है। मेरा भगत ये नहीं भी सिर्फ एक थां ते कोई चौंकड़ा मार के बैठा हुआ है तो वह आखे भी मैं तो दुनिया का कोई काम करना ही नहीं। किसी अदीब ने बड़ा प्यारा लिखा है, वो कहता है भी असल दे विच जिहड़ा धर्म के राह ते तुरन वाला है ना, धर्मी पुरख है। तो धर्मी पुरख का मतलब ये नहीं भी वो कोई काम ही ना करे, उन्हें कोई किरत ही नहीं, कोई काम ही नहीं करना, बस उन्हें सिर्फ नाम ही जपना, होर कोई काम ही नहीं करना। नहीं, उन्हें अपने फर्जां नूं भी निभाउणा है। उन्हें जिहड़े फर्ज ने समाज के प्रति उन्होंने निभाउणा है। उन्होंने फर्जां नूं निभाउंदियां होइयां उन्हें जीवन नूं बतीत करना है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ समाज के प्रति फर्ज बनते हैं, अपने परिवार के प्रति फर्ज बनते हैं, उन्होंने फर्जों भी उन्हें निभाना है। तो उन्हें परमात्मा की बंदगी भी भगती भी करनी है, अकाल पुरख परमात्मा का नाम भी जपना है। यही कारण से कि गुरु नानक पातशाह जी के वेले कई ऐसे मनुख हुए जेड़े कि भगत होने का दिखावा करते रहे, तो महाराज पातशाह जी ने उन्होंने नकार दिता। कह लगे नहीं, इहो जी भगती इस घर में प्रवान नहीं, इत्थे तां वो भगती प्रवान है जिहड़ी असल दे विच रब्बी गुणां दी भगती है। कदी भगत त्रिलोचन जी चल के भगत नामदेव जी को आई तो भगत नामदेव जी को वेख्या वो काम पे करते सन, किरत करते सन। तो भगत त्रिलोचन जी कह लगे भी नामदेव की गल हुण तू भगती का राह छड्ड दिता है, तू परमात्मा का नाम जपना छड्ड दिता है। उन्हें आख्या नहीं, कह लगे भी तू तो किरतकार लग गया, काम लग गया करन। कभी गुरु नानक पातशाह जी ने भी भंगर नाथ जोगी ने कह दिता सी, ऐ नानक तू तो असल में भगती वाले जेड़े वस्त्र सन उदासियां वाले तू ला दिते ने, तो संसारी कपड़े पा ले ने। तो गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या सी, कह लगे भंगर नाथ तेरी मत थोड़ी है, तेनू फिर पता ही नहीं भी धर्म का संबंध असल दे विच भगती का संबंध कपड़ियां नाल नहीं होया करदा, भगती का संबंध बंदे दे अंदर नाल होया करदा है। असल भगती मनुख के जीवन में रब्बी गुणां नाल हुंदी है। तो गुरु नानक देव पातशाह जी ने कह दिता, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। भगत दे तत्ते नूं सियारी भगती, परमात्मा की भगती बिना गुणा तो नहीं हो सकती। तो जे जीवन में गुण ने तो मनुख
किते भी है, समझो वो संसार के कार विहार भी कर रहे हैं पर रब्बी गुणां नूं जीवन विच बतीत कर रहे हैं, समझो उनका जीवन भी एक भगती है, जे उनका रब्बी गुणां अनुसार जीवन है। भगत नामदेव जी ने कह दिता, कह लगे भी तुसीं हुण काम छड्ड दिता है, परमात्मा वाले राह ते तुरना छड्डता है, संसारी काम शुरू कर लिया। ते भगत नामदेव जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, कह लगे नहीं त्रिलोचन, भगती का संबंध परमात्मा की बंदगी का संबंध मनुख के अंदर नाल है, बाहर नाल नहीं। यही कारण सी कि लोगों ने भगत नामदेव जी को बाहरी तौर पर वेख्या, ते जेड़े भगत होने का दावा करते सन उन्होंने भगत नामदेव जी को मंदिर विचों फड़ के बाहर कढ़ दिता। वो कह लगे असल भगत असी हाँ, क्यों असी सारा दिन मंदिर में रहने हाँ, सारा दिन पूजा करते हैं, सारा दिन वेद शास्त्र पढ़ने वाले दूजिया पढ़ के सुनाते हैं, तो भगती करने का अधिकार भी सानू है। तुसी कौन होंदे भगती करने वाले, क्योंकि तुसी नीवी जात वाले हो। तो एक नीवी जात वाला जे मंदिर में आ जाए तो वह मंदिर ही भ्रिष्ट हो जाता है। माफ करना, असल दे विच भगवान तो वह होंदा है। नामदेव जी ने आख्या भगवान तो वह होंदा है, कोई नीवी जात वाला आवे तो वह भगवान के दर्शन करे तो उच्ची जात वाला हो जाए, पर इत्थे उल्टी सी। कह लगे नीवी जात वाला आया तो भगवान ही भ्रिष्ट हो गया। कह लगे फिर तुहाडा भगवान तुहाडा राम झूठा है। मेरा भगवान जिहड़ा है कह लगे वो हर थां ते है, हर जगह ते मौजूद है, हर जरे जरे में समाया हुआ है। तो जेड़े भगती करन दा पखंड करते सन ना, भगत नामदेव जी की बांह फड़ी ते बाहर कढ़ता मंदिर विचों। भगत नामदेव जी ने खुद बाणी विच जिक्र किया है, हस्त खिल तेरे दहरे आया, भगत करत नामा फकर उठाया। हुण भगती करते हुए नामदेव नूं मंदिर विच उठाया। हुण नामदेव जी तो इस करके आए भी भगवान का मंदिर है, लोग इत्थे भगती करते हैं, मैं भी भगती करनी है। पर जिहड़े भगत कहाउंदे सन, भगत कहाउण का नाटक करते सन, उन्हें फड़िया नीवी जात वाला बांह फड़ के बाहर कढ़ता। तो भगत नामदेव जी कह लगे उस समय अपनी परमात्मा अगे बेनती की, अरदास की भी, कह लगे जे तू है वाकई हर थां ते है तो फिर अज इन्हों विखा भी नामे का जिहड़ा भगवान है, नामे का जिहड़ा परमेश्वर है वो किसी एक मंदिर में स्थापित नहीं है, किसी एक मंदिर का कह लगे केवल मंदिर में वसन वाला नहीं है, उनका तो सारा संसार ही मंदिर है, सारी कायनात ही उनकी मंदिर है, उनका वासा सारी कायनात विच है। तो कह लगे फिर परमात्मा ने फिर लाज रखी भगत नाम दे, क्योंकि सुभाव है, बिरत सुभाव है, हर जुग जुग भगतू पाया पैज रखदा आया राम राजे। उनका बिरत सुभाव वो अपने भगत की लाज पैज हमेशा रखता है। तो भगत नामदेव जी की लाज फिर रखी, हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दे मुख लाया। जिन्ने भी हंकारी सन, आकी लोग सन, उन्हां वल पिठ हो गई रब दी, ते भगत नाम दे वल मुख हो गया। हुण ऐसी भगती गुरु नानक पातशाह जी की है, गुणां दी भगती। गुणां दी गल गुरु नानक पातशाह जी करते। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी आखते ने, जिदन तू फगण दे महीने विच तेरी अवस्था पहुंचेगी, समझी तेरे जीवन में रब्बी गुण आ जाएंगे। रब की परिभाषा तुसीं किवें करोगे? बिना गुणा तो रब की परिभाषा नहीं कर सकते। रब की परिभाषा ही रब के गुणों के नाल की जा सकती। इस करके गुरु नानक पातशाह जी ने जे रब की परिभाषा दसी है, सब तो पहला भी वो एक है, सर्वव्यापक है, वो सदीवी सत है, सदीवी होंद वाला है, वो करनहार है, करता पुरख है, सारियां विच उनदा वस है, हर थां ते रविया होया है, वो निरभव है, ये उनका गुण है, उन्होंने किसी का डर नहीं, निर्वैर है, उनका किसी नाल वैर नहीं, ये गुण है, ये रब दे गुण ने। वो अपने आप तो बनया, जूना विच नहीं आउंदा, पर गुरु की कृपा नाल मिलता है। तो गुरु की कृपा नाल गुरु ग्रंथ साहब गुणों का खजाना है। गुरु ग्रंथ साहब विच अथाह गुण ने। जे आपां गुरु ग्रंथ साहब तो सीखना चाहिए तो माफ करना, तुसी जे किते अपने जीवन वाल आपां झाती मार के वेखीए
ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥਾ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੇ 50 ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 50 ਗੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵਾਂ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਖਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਹ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਵੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਚੱਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਰਧਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਸਨ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਣੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆਏ। ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
अपने विचों रब सानूं नज़र आ जाएगा। तो यह है प्रगट होना, है पहला ही, बस समझ नहीं है, अज्ञानता कारण नज़र नहीं आता। ज्ञान मिलिया, गुरु ने फिर दर्शन करा दिते, प्रगट हो गया। हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के। पर उस सज्जन प्रभु तक पहुँचने विच सहायता किने कीती? उन्हां संत जनां ने जिहड़े वो रमे हुए परमात्मा नाल जुड़े हुए सन। इस करके उन्हां दी संगत करनी चाहिए जिहड़े रब नाल जुड़े हुए ने। उन्होंने फिर दसिया भी इस तरह तू परमात्मा का नाम जप, इस तरह सिमरन कर, इस तरह तू विचार कर, इस तरह तू बाणी दे नाल जुड़, तब तू सज्जन प्रभु परमेश्वर तक पहुँच जाएगा। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, बस कृपा हो गई, बख्शिश हो गई, तो उनका मिलाप हो गया। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नहीं जाए। हुण जेड़े परमात्मा प्रभु नूं अपने अंदर प्रगट कर लैंदे ने, उन्हां दी हिरदे रूपी सेजा भी बड़ी सोहनी हुंदी है, खूबसूरत हुंदी, बड़ी प्यारी हुंदी है। साडे घर किसी मेहमान ने आउणा होवे ते आपां किवें तैयारियां करदे हां? असीं अपने घर नूं किन्ना सजा के किन्ना खूबसूरत बनाउण दा यतन करदे हां, क्योंकि साडे घर विच कोई मेहमान आवे ते वो आखे भी किन्ना खूबसूरत घर है। जिस हिरदे घर विच रब ने आउणा है, वो हिरदा घर भी बड़ा सोहना ते खूबसूरत होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, क्योंकि उत्थे सज्जन प्रभु ने प्रगट होना है। तो हिरदे रूपी सेजा बड़ी सोहनी है। तो महाराज कह लगे उत्थे हुण सुख ही सुख है, सारे सुख ने, उत्थे दुख नहीं हो सकता। इच पुन्नी वडभागनी वर पाया हर राय। वड्डे भागां दे नाल जीव इस्त्री दी मनोकामना पूरी हो जाती है। चेत गोविंद आराध्य तो आरंभ किया सी ते हुण फलगुण तक पहुँच गया, तो होया कि इच्छा पूरी हो गई। वड्डे भागां वाली जीव इस्त्री की इच्छा पूरी हो गई। वर पाया हर राय, हरी राजा प्रभु वर मिल गया। मिल सहियां मंगल गावे। हुण वो सतसंगत रूप विच अपनियां सतसंगी सहेलियां नाल परमात्मा प्रभु की सिफत सलाह दे गीत गाउंदी है। मिल सहियां मंगल गावे, गीत गोविंद अलाए। वो गीत जिहड़े प्रभु के गीत ने, जिहड़े रब्बी बाणी के शब्द हैं, परमात्मा के गीत, परमात्मा की सिफत सलाह नूं फिर गाउंदी है, भाव गुरबाणी नूं गाउंदी है। हर जेहा अवर न दिसे, फिर वो कहती हरि प्रभु वर्गा होर कोई नज़र नहीं आता, कोई दूजा लवे न लाए। कह लगे उस दी बराबरी कोई नहीं कर सकता, परमात्मा की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में हर किसी चीज़ की उपमा किसी नाल कीती जा सकती, रब की कोई किसी नाल नहीं कर सकता। हर चीज़ की उपमा किसी न किसी नाल कर सकते हैं, तुलना कर दें किसी चीज़ की भी। कोई साढ़े कोलों गड्डी तेज रफ्तार नाल जावे, कह दें गोली बंब तेज गड्डी गई, उपमा हो गई। किसी ने असल दे विच बहुत चिट्टे कपड़ा पाया, कहने दुध वर्गा चिट्टा कपड़ा, तुलना हो गई। दुनिया में हर चीज़ की तुलना किसी न किसी ने की जा सकती, रब की नहीं की जा सकती, क्योंकि एक है तो उस वर्गा होर कोई नहीं। महाराज आखदे ने कोई दूजा लवे न लाए, हालत पलत सवारी होन निचल दित्तियां जाए। उस प्रभु पति परमेश्वर ने कृपा की, लोक ते परलोक सवार दिता। क्यों? उनके चरणों दे विच चित्त जुड़ गया, सांझ पै गई जीव इस्त्री की। तो कह लगे हुण ऐसी थां, ऐसी जगह नसीब हुई जिथे उनका चित्त हुण डोलदा नहीं, अडोल है अंदरों। हुण हमेशा ही परमात्मा के चरणों नाल अंदरों जीव इस्त्री जुड़ी रहती है। उनका चित्त निचल हो गया, मन टिक गया। जिहड़ा मन खिन खिन बाद भटकदा सी, दौड़दा सी, हुण हरि प्रभु के चरणों नाल जुड़िया हुआ है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मै ताहे। प्रभु पति ने कृपा की, उन्होंने संसार समुद्र तो बचा लिया हाथ दे के। हुण दोबारा वो जन्म मरण के गेड़ विच नहीं आ सकती। उनका लोक परलोक सुहेला हो गया। जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। हे नानक, साडी जीव एक है पर परमात्मा के गुण बेअंत हन। जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरे अंत ना किन्हीं लहिए। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तू गुणा का खजाना है मालक, ते तेरे मैं गुण एक जीव नाल बयान नहीं कर सकता। सहबादे ने जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। जेड़े उनके चरणों नाल जुड़ जाते हैं भाई, वो संसार सागर तो तर जाते हैं। बस उन्होंने केवल परमात्मा के चरणों का ओट असर है। अखीर महाराज बचन करते हैं, फल गुण नित साला ही है, जिसनों तिल न तमाए।
ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।